one more chance to ask your parents to message their personal number in order to attend your class. And if your parents are saying there was the reason, then I can consider. From yesterday 7:30 to the today 12 o'clock, I was waiting from the message from the parents from these 40 students. Out of the 50 students were absent, 10 students have given the reason, and that was the proper reason because from the parents' number I got the message. That's why I took the decision. I will not allow these students to attend the class. Even I allowed up to the 12:30 also that okay, no problem. Your parents are messaging. But now these 40 students will not be allowed. 25 not 25 from the commerce section and 15 from the science sections. To this problem, if they will come, I will remove from. And if you observe, anyone is coming like now it was who was here? This Lokesh Verma. अगर आपके पेरेंट्स ने मुझे मैसेज नहीं किया है, आपके पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, मैं आपको क्लास अटेंड नहीं करने दे रहा हूं, मेरे 7-8 मिनट इस चीज में वापस चले गए, एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाने आया हूं, ना कि ये काम करने के लिए आया हूं, इसलिए डिस्टर्ब ना करें। मेरे पास अभी स्ट्रेंथ यहाँ पर 48 की करीब हो गई है, टोटल स्ट्रेंथ इज 50। कौन है इसमें एक्स्ट्रा देखें आप, जिसको मैंने मना कर रखा है उसके बाद वो क्लास में आए हैं। ज्यादा होशियारी मत बताना, मैं अभी इसके अंदर इसकी स्क्रीनशॉट लो, अभी जस्ट इसमें नाम आ जाएगा, मुझे स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर करना थोड़ी देर बाद। दोनों स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो, 4:10 पे जो लिया है, अभी पता लग जाएगा कौन स्टूडेंट प्रेजेंट है इसके अंदर। जिसका नाम मैंने मना कर दिया उसके बाद भी आए हैं, और ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग भी रख रहा हूं सेव अपने पास। जबरदस्ती नहीं पढ़ाना मुझे नहीं पढ़ाना कोई जबरदस्ती किसी भी स्टूडेंट को, जिसको पढ़ना उसी को पढ़ाना, इसलिए तो मैंने कहा आप एंजॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें डिस्टर्ब मत करो। बहुत हो गया सिंसियरिटी से काम करना, बहुत सिखा दिया तुम लोगों ने हमको इस साल। और क्रिटिसिज्म आता है पेरेंट्स का और स्कूल का, और पेरेंट्स का और टीचर का क्रिटिसिज्म करते हैं बच्चे, बस हमारे मम्मी पापा ऐसे, हमारे स्कूल ऐसा, हमारे टीचर ऐसे हैं। खुद क्या हो देखो, पहले ही करना आता है बस। Probability, chapter 13. The first definition or first point related to this is conditional probability. Conditional probability. Before this conditional probability in class 10th, 9th and 11th, we have already studied about the probability, but that was very simple probability because in 9th and 10th there were no permutation combination, no use of permutation and combination. But class 11th, you must observe that there were the number of questions, they taking the 3 cards, 4 cards, 3 balls, 4 balls, such type questions were there. And for that, these cases we have used permutation and combination, and for other cases permutations also. So when permutation and combinations introduced in probability, it is become quite difficult, because all of you know probability, as I told you last year also, probability needs more thoughts, more logics. Probability needs more thoughts, more logic. To understand the questions, we have to read 2, 3 times and to understand the question, and take only 1 minute to write the solutions. That's why this chapter is very much important in future aspects also, because in the maximum competitive exams, they are asking the question from probability, permutation, because these are showing your logic, your creativity, your logic, how you solve the problem, how you divergently think to solve any mathematical problem or any problem in life also, because when you solve these problems, that means how to tackle and how to solve the problems that you are going to face in any situation. So this helps to know the personality of the human being also. That's why it is very important. So as I told you just now, it takes 4 minutes to think and 1 minute for writing the answer if it is 5-minute question. But in other chapters, taking 1 minute to think and 4 minutes to write the solution, like in maxima, minima, integration, differentiation, जितना भी बड़ा क्वेश्चन, अगर 5 नंबर का 5 मिनट का क्वेश्चन है, यू आर टेकिंग 4 minutes ऑफ राइटिंग 1 minute, अच्छा इसमें ये करना है, इसमें डबल डिफरेंशिएशन, इसमें ये करना वो करना है,
पर यहाँ उल्टा है, यहाँ आप देखेंगे सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल स्टेप्स, वेरी 2 3 4 स्टेप्स में सिंपल सॉल्यूशन हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में ही कुछ बड़े सॉल्यूशंस हैं इसमें, और उसमें सोच भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब वो 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। फाइनली लॉजिक क्वेश्चंस में सोचने के लिए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली सोचना होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, आंसर लिखने में टाइम कम लगता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज दिया है। और मैंने जान करके अब इससे बच्चों के साथ जो नहीं चाहते हैं पढ़ना, उनका लॉस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम ओनली वन, देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस ऑन द यूट्यूब, यू कैन सी देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। But you are irritating the teachers, you are not attending the class, giving the message in the WhatsApp group and saying sir वो वाला चैप्टर थोड़ा टफ है, हमको डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है, अपन एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाएंगे, और उसमें 50 बच्चे absent होते हैं 98 में से। Then what the teacher will feel? We are leaving our personal work, whatever we have. Morning classes are there in the schedule. It was no class today, yesterday, and therefore yesterday, Friday, Saturday, Sunday we don't have the class. Still I taught in last 3 days. I am teaching because the syllabus must be completed in the proper way. Anyway, if I start to give the lecture, then you will get bored and you will say कि सर पढ़ा दो आप तो हमें। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा नाम से ही पता लग रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबंधित प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रतिबंधित, प्रतिबंधित मतलब समझते हैं ना, सीमा, लिमिट। कंडीशन, कंडीशन है कुछ ना कुछ इसमें। और इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। पर इसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने एक स्पेशल नोटेशन भी बनाया है, क्योंकि अभी तक जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी 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 पढ़ते आ रहे थे। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है ना, एडिशन थ्योरम पढ़ी हमने पिछले साल, इनमें सब में प्रोबेबिलिटी यूज किया। पर भी कभी भी प्रोबेबिलिटी के आगे ये वर्ड ही नहीं लगा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इवेंट्स जरूर पढ़ी टाइप्स, पर ये वाली प्रोबेबिलिटी तो ये पहली बार आया 12th क्लास में, 8 9 10th 11th में हमने कभी नहीं पढ़ा ये वर्ड। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल नोटेशन भी बना दिया है, और वो नोटेशन ये है P ऑफ A by B। इसलिए मैं स्टडी इससे कर रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसका नोटेशन पहले बता रहा हूँ। दिस नोटेशन इज यूज टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी। जब तक नहीं कहा गया हो मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, इसका मीनिंग P ब्रैकेट में A by B का मीनिंग हमेशा ये लगाया जाएगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नोटेशन है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A when B has occurred, B has occurred, A इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि B हो चुकी है। द इवेंट B हैज occurred, इवेंट B हो चुकी है। जो इवेंट हो चुकी है वो कंडीशन है हमारी, और उसके होने के कारण A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए इसको बोल देते हैं कंडीशन। द करंट कंडीशन इज गिवन कि B का होना A के होने को प्रभावित कर रहा है, मतलब A का होना B पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसका दूसरा नाम हम यहाँ पर डिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर भी लगाएंगे, जो हम अभी रिमार्क में आगे लिखने वाला हूं। क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपने लास्ट नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़ी है आपने, नेगेशन टू एन इवेंट पढ़ा है आपने, कंपाउंड इवेंट्स पढ़ा है आपने, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स पढ़ा है आपने, ये सब लास्ट ईयर पढ़ा है। 11th क्लास, 11th क्लास की वीडियो में भी आप देख सकते हैं ये सब चीजें। अगर आपको लगता है 11th क्लास की वीडियो का, 11th की हमें वो जो क्लास ली थी 11th वाली, जो 11th में हिस्सा लिए, वो शेयर करो तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ पी ए बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं सिंस पी ए का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एन ए बाई एन एस होता है, बोलेंगे ना, एन ए बाई एन एस होता है, यस और नो? एन ए अपॉन एन एस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, फेवर अपॉन टोटल, फेवर अपॉन टोटल, फेवर अपॉन टोटल। अब ये फेवर अपॉन टोटल एक सिंपल में हम वर्ड यूज करते थे, टोटल नंबर ऑफ केसेस।
फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम एस सैंपल स्पेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम एस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम एस। थोड़ा सा उसी चीज को मैं अलग ढंग से लिख रहा हूं, मीनिंग तो वही है। एस मतलब जैसे अपन डाई फेंकते हैं तो एस के अंदर 1 2 3 4 5 6 आएंगे ना, तो 6 एलिमेंट्स है इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम एस फेवरेबल, उसमें से अगर मान लो मैंने बोला इवेंट, इवेंट अपन एज्यूम करते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस टू एन इवेंट, अगर ये चाहे तो ये वर्ड लिख देता हूं, टू एन इवेंट, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस टू एन इवेंट। ओके, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस टू एन इवेंट from S equal to total number of cases from sample space S. How to find favorable number of cases to an event from S? तो S sample space का होना जरूरी है कि नहीं, और sample space जब तक नहीं होगा तब तक इवेंट आएगी कहां से? आप सोचो इस चीज को, इवेंट ए का होना किस पे डिपेंड कर रहा है? सैंपल स्पेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर सैंपल स्पेस ही नहीं है, आपने सैंपल ही परफॉर्म नहीं किया, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म नहीं किया, तो सैंपल स्पेस कहां से बनेगा? तो सैंपल स्पेस के बनना रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स मतलब जो फेवर करते हैं उस इवेंट को, उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, किसमें से? एस में से। The same thing will be used, the same concept will be I'm going to use, but in writing the way, in different way I'm writing. इस चीज को मैं ऐसा बोलूंगा, favorable number of cases from S to an event, favorable number of cases to an event, ठीक है, event A from S। अब आपको पता है कि S सबसेट, S जो सैंपल स्पेस है वो बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ऐसे बनाते थे, देखो ये यूनिवर्सल सेट है S, और ये इसकी इवेंट होती है ए। तो ए के वो एलिमेंट, एस के वो एलिमेंट जो ए में चले गए हैं, एस के वो एलिमेंट जो ए में चले गए, तो मतलब एस और ए में जो कॉमन है वो एलिमेंट से आएंगे ना, बाहर वाले एलिमेंट तो ले नहीं सकता, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन एस, ऐसा लिख सकता हूं। इसका मीनिंग यही है मैथमेटिकली, ए और एस के कॉमन एलिमेंट, मतलब जो छोटा है उसके एलिमेंट। अभी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, नंबर ऑफ पीपल आर कॉमन इन नीमच एंड एमपी, तो कौन से कॉमन आएंगे? नीमच और एमपी में क्या कॉमन आएगा? नीमच, छोटा सेट है, उसके अंदर है, सबसेट है, तो एन इंटरसेक्शन एस, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे ऐसा, नीमच और एमपी, ये नीमच और एमपी है। डिवाइड में क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब एनएस। मतलब इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, जो अभी तक हम 10th 9th में एन अपॉन एनएस लिखते थे ना, उसको सेट नोटेशन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट लगाकर ऐसे लिखता, तो कोई बुरा नहीं लगेगा किसी को। क्यों बुरा मानोगे? इसमें क्या बात है? बात मैथमेटिकल लिख दिया सर, 9th 10th में नॉलेज नहीं था इसलिए इंटरसेक्शन यूज नहीं करते थे, 11th में हमने इंटरसेक्शन का मीनिंग पढ़ लिया, तो ऐसा लिख सकते हो आप सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं बुरा मानेंगे हम। फिर भी बुरा मानो तो फिर अपने घर पर बैठो, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं, अब 11th क्लास मैथ्स में अगर आपने नहीं पढ़ा लोकल, जिसे अपन बोलते थे ना लोकल क्लास, लोकल, तो वो लोकल तो दिक्कत देती है फिर हर जगह। जो सोचते थे अरे लोकल 11th में तो मजे करो खूब यार, घूमो फिरो, पास हो जाएंगे, सब देखेंगे 12th के 12th में। देखो अब देखो, लोकल मजे करो, जिसने बोला था उससे भी बात करके आओ, वो जिसने बोला था ना वो भी लोकल ही होगा अभी। एन ए इंटरसेक्शन एस अपॉन एन एस, दिस इज पी ए, और मैं इसको देखो ऐसा लिख देता हूं, पी ए बाई एस। एक तरह से ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही नोटेशन था, लेकिन कभी यूज नहीं किया, क्योंकि अरे 9th 10th क्लास में जैसे तैसे तो बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझ में आती है, 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन वैसे ही दिमाग खराब कर रहा है, फिर उसके अंदर हम ये चीजें भी एक्स्ट्रा पढ़ा दें थोड़ी सी, उस समय तो नहीं पढ़ाई, जरूरत भी नहीं थी कहीं, अब 12th में तो पढ़ना है। अब मैं उसी चीज को दूसरे वे में लिख रहा हूं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? वो है तो वही चीज, ए बाई एस लिख दिया मैंने। ए बाई एस का मतलब भी ये ए का होना जब एस हो चुका है, क्योंकि पहले सैंपल स्पेस ही तो बनता है, डाई को हम फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस ही तो बनेगा पहले, 2 डाई को फेंकना, 1 डाई को, और कॉइन्स को, whenever we are doing such experiment, random experiment trials, first we make the sample space, then only from them we take the
specific elements whatever required according to the questions. Yes, am I right? So I'm writing like this. कुल मिलाकर जो ये फॉर्मूला था पिछले साल तक उसको मैंने ऐसा लिख दिया, in order to get the formula for this, see now I will write for this p a by b, क्योंकि जो s था वो यहां पे b बन गया, जो s था पिछले साल तक a by b के नोटेशन में वो b बन गया, मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना वो सिंपल स्पेस का काम करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नोटेशन में, और a ऊपर जो लिखा उसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और जो b है वो सिंपल स्पेस का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हो चुका है, सिंपल स्पेस पहले आता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, n a इंटरसेक्शन b बाय एन बी, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। This is the formula, first formula for getting the conditional probability of A when B has already occurred. A के होने की probability जब B हो चुकी। अब आपको लगेगा सर ये B हो चुकी है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको समझाऊंगा, मैं अभी तो थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन में कराऊंगा तो भी समझ में आएगी बात, देखो कैसे पता लग रहा है। और आज ही साइंस के स्टूडेंट ने इसकी एक्टिविटी करी है, लेकिन वो बिना कंसेप्ट के करी थी, अभी उनको लगेगा अच्छा ये हुआ था, उनको पास उसको फिगर को देखा उसके हिसाब से बनाया, थोड़ा बहुत मैंने उनको वहां समझाया कि ऐसे ऐसे करो। कॉमर्स स्टूडेंट्स आर कमिंग सून टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द ऑडिटोरियम फ्रॉम टुमारो ना, एम आई राइट? Am I right? Please, one student message here, yes or no, from 22, 23, 24, 3 days you will come now? 22, 23, 24, 3 days you will come, and then 25 is holiday, then 26 and 27, like this, 5 days you will come. So the what are the activities, first and second, according to date you prepare all the stuff and all the material required you bring. Don't say there sir मैं वो चीज भूल गया हूँ, वो भूल गई हूँ, घर चले जाऊँ लेकर आ जाऊँ, कोई नहीं है। टाइमिंग आपको पता है, आप साइंस स्टूडेंट्स के ग्रुप से एक बार कोऑर्डिनेट कर लें, बिकॉज दे ऑलरेडी परफॉर्म द एक्टिविटीज। प्लीज डू नॉट मिस गाइड साइंस स्टूडेंट, अरे कुछ नहीं है यार तू तो कर लेना, ऐसा मत बोल देना है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब चेक कर रहा हूँ फिर टाइम खराब होगा आपका। सो प्लीज कोऑर्डिनेट ईच लीडर ऑफ ईच ग्रुप, of each leader please coordinate with the science student before coming tomorrow in the activity. The timing is 12 o'clock, okay, 12 to 1:15. We will perform activity number 1 and 3 tomorrow. Am I right? Is it okay? And the rest of the instruction, rest of the things you can coordinate with the science students leaders. And read and come, don't come directly, bring all the things. Next step, I divide this result the next step, n intersection b by ns, I divide by ns both sides because ns is not equal to 0. Here also nb is not equal to 0. इवेंट हो चुकी है और वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होती कभी भी, तो बी इवेंट कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होगी अगर डिनोमिनेटर में जो लिखा वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है। हमने दोनों को ns से डिवाइड कर दिया बिकॉज ns नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सैंपल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा सेट होता है, उसमें मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करा उसमें कोई मेंबर ही नहीं है तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। दिस वी कैन राइट यूजिंग द सेम रिजल्ट n इंटरसेक्शन b ns, वी कैन राइट वही वाली बात यूज करके हम इसको लिख सकते हैं p a इंटरसेक्शन b, और इसको क्या लिख सकते हैं पी बी। सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला, देयरफॉर पी ए बाई बी का एक और फॉर्मूला बन गया मेरे पास इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखो आप ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स इन द सेट। मेंबर्स कितने सेट में, तो दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें समटाइम्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी दी होती है कुछ में और कुछ में
सेट फॉर्म हो जाता है और उसके फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, तो इंटरसेक्शन में कितने, ए में कितने, बी में कितने, वी कैन फाइंड इजीली, तो वहां पर हम ये यूज कर लेते हैं। जहां पर लगता है वो पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, जैसे कार्ड्स वाले क्वेश्चन है वहां पर हम सिंपल स्पेस और सेट्स ए बी के नंबर ऑफ मेंबर्स बना नहीं सकते। कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, बॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन डाई वाले हैं और दूसरे कोई इंटीजर्स वाले क्वेश्चन हैं सिलेक्ट करने वाले, वहां पर हम लोग ये बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए जहां सेट्स फॉर्मेशन हो जाता है वहां ये यूज करेंगे, जहां प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा वहां ये यूज करेंगे। एक बार अटेंडेंस आप ले चुके हैं, सेकंड अटेंडेंस लेंगे आप 4:30 पर 1 मिनट जस्ट उसके बाद। हो सकता है ना इसमें से भी कुछ स्टूडेंट जबरदस्ती बैठे हो, फंस गए हों, उनको लग रहा हो कि अरे यार हमको कहाँ, हमको नहीं पढ़ना था, हम फंस गए यार, वो बच्चे अच्छे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अब आप देख लो, 15 मिनट मुझे समझाने में लगे और एक ही बार में बोर्ड भरा है बस। समझाना कितना पड़ता है, लिखा थोड़ा सा ही है। यही देख लो आप, थ्योरी में समझ में आ गई होगी चीज, कितना समझाना पड़ रहा है। 15 मिनट तो हम 10 मिनट 12 मिनट तो हमने वो डिस्कस करा अटेंडेंस के बारे में, और 12-20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट 16 मिनट तक अभी मैंने ये लेक्चर दिया इसके ऊपर आपको, और इतना से लिख पाया। लिखना कम होता है प्रोबेबिलिटी में, सोचना बहुत होता है, और सोचने के लिए आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा क्लासरूम में, तो समझ में आएंगी चीजें। इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लें उठ पटांग तो मैं कर रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसलिए मैंने आपको पिछले साल एक डिफाइन लिखाई थी, सबसे पहली लाइन, द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी 0। कब? जब क्वेश्चन बहुत उठपटांग हो। हर क्वेश्चन में मत बोलना सर डाई को फेंकने पे इवन नंबर क्या आएगा, सर प्रोबेबिलिटी 0 है सर, मुझे तो नहीं आता, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। मतलब एकदम स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वो क्या करूं कैसे करूं, ऐसा हो जाता है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो कंडीशन है, नॉर्मल होना जरूरी है, नॉर्मल लोगों ने तो, जो नॉर्मल नहीं है उनको तो सब समझ में आ जाता है, सर चलने दो, अरे सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको भी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, taken, have you taken the screenshot for your record to make the notes? Yes or no? Hello? Yes, taken. So if you have done the screenshot, that you can use for the notes. Next, from this result you will think sir example कहाँ दे रहा हूँ मैं एग्जाम, प्लीज हैव पेशेंस। चीज को समझने के लिए ना, ऐसा नहीं कि वो बीच में एक एग्जांपल देके फिर दूसरी थ्योरी पढ़ाऊं, फिर थोड़ी थ्योरी हो जाए, अभी समझ में आएगा आपको। रिमार्क 1, since PA upon B formula is equal to PA intersection B by PB such that PB is not equal to 0, therefore PB by A अगर हमसे पूछेंगे PA intersection B by PA such that PA is not equal to 0, PA by B, PB by A दोनों के फॉर्मूले लिख दिए मैंने। रिमार्क 2, PA by B, A intersection B equal to PB into PA by B. It's very important formula, very important formula. अब इसका मीनिंग समझो आप, देखो आप एक नई चीज पढ़ने जा रहे हो इस जगह पर, आपने देखा एक तो इनटू आ गया है सर। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के अंदर इनटू का यूज किया था कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में यूज करते थे कब, जब एंड आता था, अगर आपको याद हो पिछले साल, पेंट एंड शर्ट दोनों ही पहनना है, पेंट और शर्ट, तो और के लिए यूनियन, और इंटरसेक्शन के लिए एंड लगता था और उसके लिए मल्टीप्लाई आता था। ये नोटेशन बताए थे, देखो मैं फिर बता रहा हूं, प्लस यूनियन और इनटू इंटरसेक्शन एंड, ये चलते हैं तीनों साथ हमेशा।
ठीक है, प्लस यूनियन और एंड, मल्टीप्लीकेशन इंटरसेक्शन एंड। देखो यहां इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के लिए मल्टीप्लीकेशन आएगा। इसका मीनिंग क्या पढ़ोगे आप? ए एंड बी बोथ, ए एंड बी दोनों ही इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, पी बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको क्या लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। और इसको क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। ऐसी इवेंट्स को जिसमें ए का होना बी पे डिपेंड कर रहा है या बी का होना ए पे डिपेंड कर रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नोन एज डिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी को हम डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझाओ ना सर, ये डिपेंडेंट इवेंट्स चीज नहीं एकदम आ गई अचानक। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, पर मैथमेटिकली सॉल्व बाद में करूंगा ना पूरा एक क्वेश्चन लेके। देखिए मैं ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लिया आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसको आपने अच्छी तरह से शफल कर दिया एंड यू आर टेकिंग वन कार्ड, उसको देखा, उसको बाहर रख दिया, नीचे रख दिया आपने, फिर उसने आपने उन कार्ड्स को फिर वापस शफल किया एंड देन नाउ यू आर टेकिंग अनदर कार्ड। See what you did in the first case, you took one card, keeping it outside without replacement. We are not replacing in the deck of cards, उसको बाहर रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं। तो ये जो दो इवेंट हमने किए, इन इवेंट्स को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स। कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक के बाद एक। तो कॉन्सिक्यूटिव इवेंट से रिलेटेड वर्ड होता है डिपेंडेंट। कब? जब दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी से अफेक्ट हो रही हो। क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे सेकंड केस में, आप बताओ? 51, पहले 52 थे, एक कार्ड को बाहर रख दिया था आपने, दूसरा निकाला। तो जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे के कारण अफेक्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें तो दिख ही रहा है, ए का होना बी पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड, ये वाला नोटेशन ही बता रहा है, ए का होना बी पे डिपेंड कर रहा है, बी का होना ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बी बाई ए के केस में। सो ए बाई बी जब जब नोटेशन आएगा तब तब हमारे माइंड में ये तो लगेगा कि ये जब नोट आ रहा है तो ए और बी अगर है तो इसका मतलब ये कैसी इवेंट्स है हमारे पास? डिपेंडेंट इवेंट्स, एक का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है? एक का होना दूसरे को रोकता है, हैपनिंग ऑफ वन प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अदर, दैट इज द साइमल्टेनियस इवेंट्स। डाई को फेंकने पर इवन नंबर आना या ऑड नंबर आना दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। पर यहां पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ टू कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स है, तो कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स इज रिलेटेड टू द डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड साइमल्टेनियस इवेंट्स से, साइमल्टेनियस इवेंट से रिलेटेड क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है। इसलिए पिछले साल आपने एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, इस साल हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि ये इनटू आ जाता है। इज ऑल्सो नोन एज multiplication theorem on dependent event, multiplication theorem for dependent events, इसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर थ्री इवेंट्स, फॉर थ्री डिपेंडेंट इवेंट्स, अगर आपके पास थ्री डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, रिमार्क नंबर 3 लिख रहा हूं, देखो
थ्री है मतलब ए एंड बी एंड सी, तीन इवेंट्स। अभी मैंने कार्ड वाला एग्जांपल दिया आपको, बॉल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें एक वर्ड यूज होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें लिख भी देता हूं मैं, कैसे पता लगेगा। जनरली ये वर्ड जो होगा जिससे आपको पता लग जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स वाला क्वेश्चन चल रहा है, वापस रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बॉल्स को निकाली बाहर रख दी, कार्ड को निकाला बाहर रख दिया, रिप्लेसमेंट नहीं किया, और रिप्लेसमेंट कर दिया, वापस बॉल को डाल दिया बॉक्स के अंदर, कार्ड में, वो कार्ड को वापस कार्ड में डाल दिया, तो वो विथ रिप्लेसमेंट होगा, जिसमें आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तीन इवेंट्स भी हो सकती है वो। फॉर थ्री डिपेंडेंट इवेंट्स हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए पी बी बाई ए पी सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। देखो कितना क्लियर है इसका मीनिंग, अगर आप ध्यान से देखें, इसको पढ़ो, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, मैं ऐसे पढ़ूंगा इसको, ए के होने की प्रोबेबिलिटी। मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। फिर मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज अकर्ड। ए और बी, एंड लिखूंगा ना, इंटरसेक्शन है, ए और बी दोनों हो चुकी। सर कैसा क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, किस तरह से होगा, देखो थोड़ी सी देर के लिए बता रहा हूं। मान लो एक बॉक्स है, ऐसे क्वेश्चन है, एन अर्न, अर्न मतलब समझते हैं ना, एक मटका, एक कलश, एक थैला, बैग, उसके अंदर बहुत सारे बॉल्स रखी हुई है। मान लो सिक्स रेड बॉल है, फाइव व्हाइट बॉल है, फोर ग्रीन बॉल है। ये बॉल वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। इन ऑल द थ्री केसेस, तीनों बार जो आपने बॉल निकाली वो तीनों ही बार रेड कलर की बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाली बॉल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा ना। अब फर्स्ट वाली बॉल रेड आए, वो 10th क्लास के नॉलेज से लिखोगे आप। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिक्स रेड है, टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 15। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/15। अभी रफ लिख रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन सिस्टमेटिक करूंगा मैं, अभी समझाने के लिए कैसे यूज होता है। फिर सेकेंड केस बी बाई ए, सेकेंड केस बी बाई ए, सेकेंड केस में हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड बॉल भी रेड आए जबकि पहले रेड आ चुकी है और उसको आपने बाहर रख दिया है, तो कितनी बची रेड बॉल, पांच। टोटल कितनी हो गई 14, 5/14। तीसरी बॉल भी रेड आए जबकि पहले और दूसरी रेड आ चुकी है, तो रेड बॉल कितनी बची, तीन में से दो बाहर चली गई तो फोर, और टोटल बॉल भी कम हो गई, 15, 14 और 13। ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देखो ये ऐसी जो ट्रिक है, इस तरह से मैंने लिखा है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने माइंड में क्या सोचा था कि आपका भी 24th को, 24th से आपके स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्स मेंस के, साइंस स्टूडेंट के, तो ये थ्योरी में पढ़ा दूंगा, तो शायद कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल जाए। किसी दो क्वेश्चन भी अगर उनको आ जाए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाए इस थ्योरी से, तो उनको हेल्प मिलेगी। वैसे आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ते हैं, सब पढ़ा है आपने, हमें पता है ना, टीचर्स की जरूरत होती नहीं है, आप यूट्यूब पे सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी बैठे हैं, देखो ना 50 बच्चे बैठे हैं ना, तो उनको भी कुछ तो मिलता ही होगा, तभी तो आए, नहीं तो वो भी नहीं बैठते। तो ये सोच के हम पढ़ाते हैं, ये हमारी सोच होती है। बाकी जो दुनिया में जो सोचना चाहे सोचे, आप लोग जो सोचना चाहते हैं सोचो। हमारा तो यही था एम, कि हम इस तरह से चीजें पढ़ा दे। पर जब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो हम क्यों फिर उनको जबरदस्ती करें, क्यों हम स्ट्रेस लें उनके पीछे इतना, जबकि समझा रहा हूँ तीन तीन चार चार बार उसके बाद भी। ठीक है, ऐसे चार के लिए भी हो जाएगा, एंड सो ऑन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तीन इवेंट्स के मिलेंगे, चार वाला भी कुछ नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 3 है अपने पास। टेक द स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट, 1 मिनट।
Okay. Now, remark number 4. Taken screenshot taken Mahag and Animesh. Yes or no? PA by B equal to PA for independent events. मीन्स अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो PA by B को आप PA लिख देंगे क्योंकि वो B पे डिपेंड ही नहीं कर रही है. इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हिंदी में बोलते हैं, है ना. जैसे आपका पास होना टीचर पे डिपेंड करता है. नहीं सर, ठीक है आप इंडिपेंडेंट हो गए. नहीं डिपेंड करता है तो, और डिपेंड करता है तो हम हैं तो बी हम हो जाएंगे और ए स्टूडेंट हो जाएंगे. स्टूडेंट का पास होना ए इवेंट और बी टीचर की मेहनत. तो टीचर की मेहनत करने से स्टूडेंट पास होगा. स्टूडेंट का पास होना टीचर की मेहनत पे डिपेंड करता है. और आप चाहें तो बोले नहीं सर, तो उसमें कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट सर, हम खुद ही पास हो जाते हैं, आपकी जरूरत नहीं है हमें, हम खुद पढ़ लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. 90% केसेस में तो टीचर की हेल्प लगती है, 10% केसेस में बच्चे खुद पढ़ लेते हैं. वी नो दैट बिकॉज आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं. PA by B, PA for independent events. Therefore, PA इंटरसेक्शन B का जो भी फॉर्मूला लिखा था PA इंटू PB बाई है, वो क्या हो जाएगा, PB बन जाएगा. दिस इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम. मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इसमें जो वर्ड यूज होगा वो होता है विथ रिप्लेसमेंट. ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमको यूज करने मतलब मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं. कि विथ रिप्लेसमेंट लिखा है मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट से, क्योंकि बॉल को वापस रख दिया. दिस इज रिमार्क नंबर 4. रिमार्क नंबर 5. फॉर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स. PA into PB into PC for 3 independent events, P A intersection B intersection C, PA into PB into PC. Okay, for 3 independent events. एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे 6 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है. कुछ भी लिख सकते हैं. 3 बॉल्स, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट. देखो विथ रिप्लेसमेंट लिख दिया मैंने वर्ड. अब समझो, विथ रिप्लेसमेंट बोल रहा हूं मतलब बॉल को वापस बाहर लाकर वापस अंदर, बॉल को वापस डाल दिया इसमें, तो नंबर ऑफ बॉल्स विल रिमेन सेम, इट विल बी इक्वल टू 15 इन ईच केस. तो पहले वाली बॉल ने दूसरे वाले बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी ना, नंबर ऑफ बॉल्स विल रिमेन 15 इन ईच केस. तीसरी वाली बॉल की प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट और सेकंड की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगी. तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अगर हमें रेड बॉल चाहिए तो 6/15, 6/15, 6/15, 6/15 का क्यूब हो जाएगा. इन ईच केस नंबर ऑफ बॉल्स विल रिमेन सेम, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट से बॉल को वापस डाल रहे, निकाल के देखा, कलर फिर वापस डाल दिया, फिर देखा, फिर वापस डाल दिया, और फिर ऐसे 3 बॉल निकाली एक के बाद एक. तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है. मल्टीप्लाई क्यों होता है वही समझाना. ये देखो, PA PB PC, पहली भी रेड है, दूसरी भी रेड है, तीसरी भी रेड है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फर्स्ट रेड बॉल, सेकंड रेड बॉल, थर्ड रेड बॉल. हम ऐसे एग्ज्यूम करेंगे. स्टेप्स स्टेप्स लिखने का तरीका मेरी प्रॉब्लम है, मैं समझाऊंगा आपको कैसे लिखनी है, पर थ्योरी समझ में आ जाए पहले. ओके,
एग्जाम्पल, two dice are tossed or thrown. टू डाइस आर थ्रोन। बस मैं सिंपल एक अपने वर्ड्स में लिख रहा हूं क्वेश्चन को समझाने के लिए। एक एग्जांपल जो अभी बोल रहा था मैं, का वो एग्जांपल देता हूं। टू डाइस आर थ्रोन, कंसिडर द इवेंट्स ए इक्वल टू फोर अपीयर ऑन वन डाई। दैट वाज द एग्जांपल जो आज आपने एक्टिविटी में किया है। कोई स्टूडेंट बताएगा वो स्टेटमेंट क्या था, मैं वही लिख देता हूं। और आई कैन फॉर्म अनदर क्वेश्चन आंसर, हेड एंड टेल का यूज करता हूं मैं, लेकिन मैं आज वो एक्टिविटी आपने करी ना, इसलिए मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। कैन एनीवन से, कैन एनीवन राइट व्हाट वाज द स्टेटमेंट? फोर अपीयर ऑन द one die and B is the event, B is the event, four appear on at least one die. Is it correct? Hello? This is the no, this is the statement. एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ था उन्होंने, वो तो आपने स्टेटमेंट दिया है अंकित। इवेंट ए क्या यूज करी थी उन्होंने? इवेंट ए, फोर अपीयर ऑन द डाई, टू डाइज आर थ्रोन। देखो मैं एस लिखता हूं, सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 से 6 6। सो दिस इज NS इक्वल टू 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 आउटकम्स आएंगे। अब लिखा है फोर अपीयर ऑन द वन डाई, फोर अपीयर ऑन वन डाई। तो ऐसे केस कितने बनेंगे? और एटलीस्ट वन डाई, कम से कम एक डाई पर। तो फोर अपीयर ऑन वन डाई में ये आएगा ना, 4 1 4 1 4 2 4 6, 4 1 4 2 4 6, 6 तो ये आएंगे। फिर 1 4 2 4 3 4 5 4, 4 4 नहीं आएगा, वो इसमें आ गया है 6 4। टोटल कितने आएंगे इसमें? 11 एलिमेंट्स। फोर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस, फोर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस। ओके, तो ये बी लिख देता हूं पहले, फोर अपीयर्स ऑन वन डाई, फोर अपीयर एटलीस्ट वन डाई। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूं फोर अपीयर ऑन बोथ डाई, क्योंकि वो ऊपर लिख दिया है मैंने, उसको बी लिया है और इसको ए बाद में लिख रहा हूं। फोर अपीयर ऑन बोथ द डाई मतलब 4 4। ठीक है, क्या फाइंड करना है? पी ए बाई बी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चार दोनों डाई पर आ जाए, फोर दोनों ही डाई पर आ जाए, जबकि फोर दोनों ही डाई पर आ जाए, जबकि ये मालूम है आपको कि कम से कम एक के ऊपर एक डाई पे फोर है। एटलीस्ट था ना, फोर अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई। बी इवेंट ये देखो उसमें आप एक्टिविटी के हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूं और कुछ नहीं है, वो जो आज आपने किया उसको समझाने के लिए। अदरवाइज फॉर्मल स्टूडेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सा भी एग्जांपल लो, मैं हेड और टेल वाला भी ले सकता था। मैंने ये एग्जांपल क्या लिया है? डाई को फेंकने वाला। देखो ये चीज आपको आती है 10th क्लास से, ये भी आपको 10th क्लास से आती है, 9th 10th 11th क्लास से आता है, इतना समझ में। ये जो मैंने बनाए हैं, टोटल केसेस कितने हैं बताओ इसमें? एन बी कितना लिखूंगा मैं? 11 केसेस हैं इसमें। देखो आप 12 नहीं आएंगे क्योंकि 4 4 कॉमन है, दो बार नहीं लिखेंगे। 4 1 4 2 4 6, एटलीस्ट वन बोला है ना, कम से कम एक डाई के ऊपर चार आए, तो दोनों पे भी आ सकता है, तो 4 4। नंबर से मतलब नहीं, 4 4 दोनों पे भी हो सकता है, इनका सम कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है। और इसमें बोला है फोर अपीयर ऑन बोथ द डाई, तो 4 4 हो गया। तो पी ए बाई बी क्या लिखेंगे हम? देखो ये नोटेशन इसके लिए यूज होता है, पी ए बाई बी और पी ए बाई बी। हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी
एन इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट, एन ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बताओ इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 4। और इसमें एलिमेंट्स कितने आए हैं? केवल एक, तो ऊपर 1 आ जाएगा। और बी में कितने हैं? 11। बी में कितने हैं मेरे पास एलिमेंट्स? कॉमन है। और ये बी में कितने एलिमेंट्स? 11। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो सुने। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, टू डाइस आर थ्रोन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। क्या करते हैं स्टूडेंट? टू डाइस आर थ्रोन, क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 appear on both the dice when it is known that there is one 4, there is at least one 4 on the die, when it is known that there is one 4 on the die, at least one 4। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों चीजों को एक साथ में सोचना शुरू कर देते हैं। क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं यार जिसमें दोनों पे 4 दिख रहा होगा, और इधर ऐसे ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं। बस वही वहां गलती होती है, उसमें गलत हो जाते हैं, कभी कभी सही भी हो जाते हैं, पर ज्यादातर गलत ही होते हैं। उससे अच्छा है आपने को 2 इवेंट दिख रही है, 2 अलग अलग एज्यूम करो, जो फाइंड करनी है उसको आप हमेशा ए ले लो, और जो गिवन है व्हेन इट इज नोन दैट, नोन दैट का मतलब क्या हो गया, गिवन है, उसको बी ले लो। अब उसके अंदर कितने केसेस है अगर बनते हैं तो ये लिखो, नहीं तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, इसमें केसेस बन रहे थे तो मैंने लिख दिए। बी के अंदर भी मुझे केसेस, ए में भी केसेस बन रहे थे तो मैंने लिख दिए, नहीं तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करता मैं। आगे आएंगे बॉल्स वाले क्वेश्चन, कार्ड्स वाले क्वेश्चन। फिर पी ए बाई बी चाहिए, पी ए बाई बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि 4 से डिविजिबल भी है और दोनों पे 4 भी है। सर 4 से डिविजिबल नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, 4 दिखना चाहिए दोनों पर। ए का मतलब क्या है, देर इज एटलीस्ट वन 4, तो है एटलीस्ट वन 4। और बी का मतलब क्या है, दोनों पे 4 दिखना चाहिए, तो फिर दोनों में 4 भी दिखना चाहिए, और एटलीस्ट वन 4 का मतलब तो यही है ना, 4 4। इसलिए ये एक केस आया अपने पास, तो फेवर में एक, टोटल 11, 1/11। इज इट ओके? कोई डाउट किसी को? अटेंडेंस लें अभी एक और थर्ड अटेंडेंस। थर्ड अटेंडेंस, टेक द स्क्रीनशॉट। कल इसके और रिमार्क्स पढ़ाए कि इसको कल करेंगे हम, सुबह क्लास लगेगी 9:45। नेक्स्ट 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। इसमें थ्योरी ज्यादा है, समझाना ज्यादा है, क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी होते हैं, अभी मैंने आपको बोला है। लीव मीटिंग।